Before I start today's session, there are a couple of announcements uh, regarding the assignments. Assignments, I have forwarded the university latest, whatever the notification the university has given in this regard for this session. December 15th is the last date for submission of all the assignments. Okay. So we need to do total 6 assignments, 3 assignments theory, and 3 for the practical assignments we need to do. So voice and speech, movement, and acting, 3 assignment practical के हैं और OVA1, OVA2 and OTH001 theoretical assignments हैं which you need to give on or before 15th of this month. And also for the people who wants to go for the examinations, fill the examination form on or before 15th December 2020 for this session. Okay, so I have given the links for the filling the examination form also, and I have given the notification. Sir, how to share the assignment? I'm coming to that point. Actually, university will give you a link. University will give you a link to upload your assignments. Sushil Kumar saying, before I let me complete first, then you can put your questions. Okay, sir. All the assignments which are supposed to be done were already forwarded in the group. If you can see the old messages in the group, you can find all the assignments. Otherwise, what you have to do is you have to go to IGNOU website and check for the assignments, and you type CPA THA, and then you can go for your July 2020 session. In that, you will find all the assignments, both practical and theory assignments. So that is one way. Practical assignments, I will tell you what you are supposed to do, when you are supposed to submit. Okay. Within couple of next counseling classes, I'll be asking you to do some practical exercises, and you will be forwarding them in the form of audios and videos. Those will be your assignments for the practicals. And the theoretical assignments, which I have already forwarded, theory assignments in the group. Otherwise, also you can check in the IGNOU website, going to student zone and then assignments. Once you click the assignments, there are number of course codes will come, program codes. There you can find CPA THA and then click it. Then your July 2020 session, then you click it, you can get all the assignments which you are supposed to do. Okay. For the practical assignments, as I told you, I will give you the questions. Otherwise, there are questions which are already there in the assignments also. You need to do it within a time frame so that you can go for the examination. And one more thing is, without doing assignments, you may not be allowed to attend the term and examinations. That is the condition of the university. That is a condition laid down by the university, not by me. Okay. So invariably, each and every candidate supposed to do 6 assignments, 3 in practical, 3 in theory, so that you can write the term and examinations. And one more thing, the term and examination dates people are asking in the group, and individually are also there putting my questions. The term and examinations will be held in the month of February 2021. 2021 फरवरी में होंगे एग्जाम्स. उसका डेट शीट अभी फाइनल नहीं हुआ है. जैसे ही डेट शीट फाइनल हो जाएगा, वो मैं आप लोगों को ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा. एंड वन मोर थिंग इज दैट कि ओनली द डेट्स फॉर द थियरी एग्जाम्स विल बी गिवन. ओके. फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस आई विल डिसाइड what will be the exact dates, and on those dates we'll be conducting the practical examinations online as we did for the last batch also. Then there ends the matter. I mean, उसके बाद you will be completing your course. इसका मतलब in February, once we go through your theoretical exams, after the theory exams or before the theory exams, we can decide and we can complete the practical final examinations also. That's all for my side.
जो भी अनाउंस करना था मैं आपको बताया हूँ। और आपके पास अभी कोई क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग है जो मैंने अभी नहीं बताया, उसके अलावा कोई मेजर क्वेश्चन है तो you can go ahead and ask me before we start our today's meeting. Sir, Sukrin Jerome here. Yeah. Just wanted to check. Sir, just wanted to check with you. Sir, last time when you had told us about the assignment, you had told us that we have to write it down handwritten and then scan it and send it to you, right? Yeah. So the format that will be remaining the same. No, we have to write it, That scan is it, and send remaining. it. Yeah, that is remaining same. But what happens is university will ask you to, they will give a link. Then also they ask you to upload those assignments. And for Okay. the record sake, I am taking your assignment. As a rule, Okay. university is asking you people to upload. That link hasn't come now, right now. So better on or before 15th December, you do all the assignments, scan it and send it to my mail ID, that is cpatha@igno.ac.in. Okay. Okay. Okay, and one more thing, sir. In the assignment, when I was just going through that format that which you have sent, that assignment list, in that they have asked for the name, address, center code, and all. So where do we get Yeah. name? I understood. Address is my address, but then what is that center code, sir? There is no center code at all because we are now, once we are doing the web enabled this thing, but once you open your admission status, in that also there will be a center code. If not, Okay. don't worry about the center codes and all that. I need only name and your enrollment number, which is most important Okay, thing. that is These what I have two written. numbers. I have written that only the Yeah, name, enrollment that, number, that and the that's all. assignment that code which was given on that That's all. OBA That's all. And 001. please see that you will send these assignment to cpatha@igno.ac.in. That's it. Okay. Okay, sir. You Thank you. first forward it. When the university asks you people to upload, then you can upload the same assignments to this thing. These So whatever the link. we will be receiving a mail regarding that uploading, or you will be sending us a link. I'll be sending it if I get it. Otherwise, you may also get the link. I don't Because you know. have sent that Sometime. examination form ka link to us today, right? So we'll be filling that. Yeah, actually, what is happening is these sending these links and all these things are not my job. As a learners, you are supposed to check the website, but for the benefit No, of the sir, because people, I am just doing it. I had checked it. It was not opening. That is the reason I asked. Open, it is not opening, that is a different thing, but it is not in my purview that I will forward all those things, but I will only inform you. But Okay, okay, since sir. it is Thank you. happening online, so I am just giving you the links. Otherwise, you will need to Thank you, check sir. out. Okay. Thank you, Any sir. other questions, sir? Any other questions? Sushil Kumar Singh. Excuse me, sir. Yeah, Excuse me. Prabuddha. Excuse- Yeah, Sir, बताइए. today I have uploaded all the assignments at cptha.ignu.ac.in. Yeah. That's what I'm going to tell you. I have received two assignment. One from Rajan Kumar Sethi. One Mr. Rajan Kumar Sethi, and the next gentleman is Prabuddha Pandey. These two guys, they have already submitted their assignments to cpatha@igno.ac.in. Okay. The rest of the people, I didn't get any from any quarter of the entire world. I'm expecting you people to complete it on or before 15th December. And please note that after 15th December, even if you are doing these assignments and send them to my mail ID, I think I am afraid I may not be able to consider them, because once you send through the mail, your submission date will be recorded officially, isn't it? So please see that you will do all these assignments on or before 15th December and mail it before the date changes to 16th December. Okay. If at all, I don't know, if at all university extends the date, that is a different issue. But as of today, the last date is 15th December 2020. Okay. Yeah. Any questions? Two people have submitted, Rajan Kumar Sethi, Prabuddha Pandey. Okay. Any questions regarding examinations, assignments and all? Yeah, अगर नहीं, हाँ बताइए सुशील जी, कुछ है तो इसके बारे में. I've already submitted in October. हाँ, कहाँ आया तुम्हारा भाई? हाँ आया. हाँ, आपने कुछ सजेस्ट भी किया था कि सेपरेट पेपर ना भेजो, कंसोलिडेटेड PDF बना के भेजो, तो भेजा था cpatha
अच्छा, तुम आप एक काम करो ना, उसको फिर से फॉरवर्ड कर दो मुझे, ठीक है? सेम थिंग, ओके, same thing, you just forward it again. What I am CPATHA, and what I am suggesting you people is please submit all 3 assignments in one single mail. Complete your 3 assignments and then send it. इकट्ठा एक बार भेज दीजिए। एक एक मेल भेजने से क्या होगा, मुझे उसको डाउनलोड करके फिर एक फोल्डर में रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। बट व्हाट आई सजेस्ट इज, suppose you are doing 3 assignments, send through one single mail so that your record will be there for all 3 assignments. You understand? OVA1, OVA2, OTH001, 3 assignments, उसको स्कैन करके एक बार भेजिए। और अगर आप पीडीएफ करते हैं तो सारे पीडीएफ्स को ऐड करके भेजिए। ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं हम लोग, आप जानते हो ना, convertfiles.com में जाएंगे, आपके पीडीएफ्स को आप चुनेंगे, प्लस प्लस करेंगे तो पूरा एक फाइल बन के हमारे साथ आ जाएगा। यू कैन सेंड इट, ओके? या दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड शैल वी मूव फॉरवर्ड फॉर टुडेज एक्सरसाइज? I am saying that nearly Sachin Srinath, why you have raised your hand, my dear? Tell me. Sir, we have to write sorry, the I think assignments I had done it earlier. Done it earlier. Why? We had not started the class, and I had missed the last couple of classes, so I just wanted to mention that. Okay. But I went through the YouTube videos which you had shared. Okay. Yeah. Okay. Okay. Now we will start today's session. I request all you people. I think you have purposefully I have not conducted एक दिन के बाद alternative day में इसीलिए class conduct नहीं किया, so that you will get time to prepare yourself for the poetry or the monologue or whichever you have chosen. Okay. So today we'll start with Tushar. Tushar is there? Tushar Arora. Tushar Arora online. Shall we start with Tushar? Yes, sir. Please. Okay, so sir, camera on करना है या only audio? As you wish. As you wish. Okay, sir. So, sir, मैंने एक पोइट्री तैयार की है रामाधीर सिंह दिनकर जी की, रश्मि रथी की जो बुक है, उसमें तृतीय सर्ग की कुछ पंक्तियां हैं, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं तुषार लास्ट टाइम बोला था रश्मि रथी को छोड़ो, आपने नहीं सुना, फिर उनको ही पकड़ा है ना सर? मैं उस क्लास में होऊंगा नहीं शायद, क्योंकि मेरे को पता नहीं तो मैं क्या करूंगा भाई, तो मैंने वीडियो इसीलिए मैं दे रहा था ना। एनीवे स्टार्ट। ओके सर। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पिलाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। That's it. Okay, तुषार। रश्मि रथी इसीलिए मैं अवॉइड करने के लिए बोला था, देयर इज नो अदर रीजन, बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर इन 1 मीटर, एक मीटर में बना हुआ है, उसमें हमें ज्यादा काम करने की मतलब जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आई एम ट्राइंग टू अवॉइड सच पोइट्री। इफ यू टेक समथिंग एल्स सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट, दैट इज ओनली माय एम, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है? ओके। उसके बाद टेकविकी, थिएटर बियॉन्ड, सुक्रीम। Yes, sir. This is Sukreen. Yeah.
So I had sir, requested to go last, sir, Last. Okay. Tech Wiki. because my mobile is तुषार on कुछ charging, बोल रहे sir. हो? That's why. ना, ओके। यस सर, यस तो सर। आप बोलिए, कुछ बोलना चाहते सर हैं मैं ये आप? कह रहा था, यस सर मैं कह रहा था कि मैं फिर कुछ और भी प्रिपेयर करके आपको मतलब दिखा सकता हूँ या सुना सकता हूँ, अगर बिल्कुल ऐसी बात है बिल्कुल। तो। अभी ऐसी ही बात है, क्योंकि मैं ये हाँ बोल रहा जी, चाहता हूँ कि वो ऑलरेडी एक रिदम में बैठा हुआ है। जब भी हाँ जी, हाँ मैं जी, किसी को पूछता हूँ तो रश्मि रथी उठाते हैं, तो आपने जो पढ़ा है इसी ग्रुप में से 2-3 लोग पढ़ चुके हैं। हाँ जी। ये ओके, यही बात ओके। नहीं है। मेरे सारे बैचेस को मैं देखता हूँ, तो दे विल पिक अप दिस रश्मि रथी एंड दे विल डू द सेम थिंग। सेम यही पोयम उठाते हैं, जो कृष्ण जी का बांधने वाला जो है ना, वही उठाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें हाँ कोई जी। गलती नहीं है, गलती की बात नहीं कर रहा मैं ये बोल रहा हूँ ऑलरेडी वो रिदम में है, उसको ट्यूनिंग बिठाने की जरूरत ही नहीं है हमें। जैसे पढ़ते जाओ तो तो उसको सर, उसी तरह से शायद पढ़ना चाहिए, है ना? तो सर मैं ऐसा करता हूँ कि एक मोनोलॉग है, वो हाँ मेरे को मतलब मैंने प्रिपेयर भी किया हुआ है, बट एक बार मेरे को उसको मतलब एक बार देखने की जरूरत है। तो आप जब ठीक तक है। दूसरे स्टूडेंट्स का लेते हो तब तक मैं उसको देख लेता हूँ और हाँ उसके तो बाद मैं आपको सुनाता सुक्रीम के बाद आप करो आज, ठीक है? टेक हूँ। विकी, ओके सर। टेक विकी साई वंशी लेफ्ट। टेक विकी यस है? सर। हाँ यस बोलिए। लास्ट टाइम भाग गया था ना तुम? नहीं सर, नहीं नहीं भागा? नहीं सर, वो प्रॉब्लम था मेरा। वो तो प्रॉब्लम भागने का ही था। चलो शुरू हो जाओ। सर सुनाई दे रहा है? हाँ जी गो अहेड। सर, इट इज अ बंगाली पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इट्स नेम इज ভগ্ন হৃদয়। हाँ শুধু যদি বলি সখী ভালোবাসা তাই, এ মনের কথা যেন তাহে না ফুরায়। ভালোবাসা ভালোবাসা সবাই তো কয়, ভালোবাসা কথা যেন ছেলে খেলাময়। প্রতি কাজে প্রতিপলে সবাই যে কথা বলে, তাহে যেন মোর প্রেম প্রকাশ না হয়। মনে হয় যেন সখী এত ভালোবাসা কেহ কারে বাসে নাই, কারো মনে আসে নাই, প্রকাশিতে নারে তাহা মানুষের ভাষা। স্যার দিস মাচ অনলি। ओके। सुशील कुमार सिंह। Okay, sir, I am ready. I want to do. गो अहेड। Well, it is a speech from the play Andhayug by Dr. Dhanveer Bharti. हाँ Context is Lord Krishna is being cursed by Gandhari, हाँ and he accepts this curse. In one of our previous session, one of our fellow mates have delivered this narration of Gandhari. Now, इंग्लिश। in English, I would like to say by the original play in Hindi. It is the dialogue is in हाँ Hindi. ठीक है। It is 6-7 line speech, you know. हाँ Cliche of Gandhari. हाँ तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। It was Gandhari. Now Krishna replies. सुशील कुमार सिंह, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको एक सिंगल पर्सन के लाइंस को प्रिपेयर करना था। इफ यू रेफर टू माय लाइंस, Okay, sir. It was यू आर स्पीकिंग, नहीं यू आर स्पीकिंग गांधारी एंड द कृष्णा एंड विदुर बीच में बोलेगा, संजय बोलेगा, बीच में डॉक्टर no, sir. भारद्वाज बोलेंगे, ये नहीं होगा। No, sir. It is only I am going to present only the speech of Krishna. डू इट। Okay. माता प्रभु या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम
मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में। कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार, मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाई हुआ, कोई नहीं था, वो मैं ही था, मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीत श्वेत बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां। शाप ये तुम्हारा स्वीकार है माता, शाप ये तुम्हारा स्वीकार माता। नहीं माता, नहीं माता, ऐसा मत कहो माता। जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। That's it. ओके सुशील। नेक्स्ट सर, सुरेखा। मैं बोलूं सुरेखा सर? जी कौन? पबुद्धा? या सर, कृष्ण रो- रो- सेम डायलॉग विद सर। सेम डायलॉग तो तुमको रुकना पड़ेगा, हम मोनाटनी में फंस जाएंगे। हाँ, आपके पास आऊंगा मैं। सुरेखा। सुरेखा जी है लाइन में। सुरेखा। संदीप। Yes, sir. प्लीज। Hello. हाँ बोलिए। Yes, sir. Sandeep, sir. हाँ बोलो। Okay, sir. Sir, it's a poem हाँ written by one of my friend's father. ओके। Okay, it's in Hindi. हाँ Okay. जो गरीब थे और गरीब हुए, जो हाँ। अमीर थे और अमीर हुए, काला धन बनती जोड़ी में फिर देश की क्या तकदीर बने। साहू की नहीं, नेता की नहीं, दौलत की हुकूमत आज भी है। इंसानों को जीने के लिए पैसों की जरूरत आज भी है। वह लोग जो कपड़े बुनते थे, वही लोग यहाँ अधनंगे हैं। यह कैसी सोने की चिड़िया, पग पग पे जहां भिखमंगे हैं। गोदाम में कैद किए बैठे खेतों की जवानी को, जहां दूध की नदियां बहती थीं, वहीं लोग तरसते पानी को। अपना व्यापार बढ़ाने को मंदिर मस्जिद को लड़ाते हैं। इंसान नहीं शैतान है ये, अनजानों को बहकाते हैं। जो ऊंच नीच की खाई है उसे पाट दी जाएगी। इंसानों को जो अछूत कहे उसकी जुबान काट दी जाएगी। That's it, sir. ओके। सगुणा। इवनिंग सर। क्या? गुड इवनिंग। सर ये कविता है, ये पद्य है तुलसीदास जी द्वारा रचित। ठीक है। बाल लीला, श्री राम जी की बाल लीला के बारे में है। हाँ जी हाँ जी। कबहू ससी मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें। कबहू करताल बजाए के नाचत मातु सबे मन मोद मरहें। कबहू ऋषियाई कहें हठिके पुनि लेत सोई जेहि लागी अरें। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमकै घन बीच जगह, छवि मोती माल मोलन की। घुंघरारी लटै लटकै मुख पर, कुंडल लोल कपोलन की। नेवछावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। पग नुपुर औ
पहुंची कर कंजनी मंजू बनी मणिमाल हिए नवनीत कलेवर पीत झंगा झलकै पुलकै नृप गोद लिए अरबिंदु सु आननु रूप मरंदु अनंदित लोचन भृंग पिए मन मोना बस्यो अस बाल कुजो तुलसी जग में फलु कौन जिए तन की दुति श्याम सरोर हलोचन कंज की मंजुल ताई हरै अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि पूरी अनंग की दूरी धरें दमकै दतियां दुति दामिनी ज्यों किलकै कल बाल विनोद करें देश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बहरें कबहू ससी मांगत आरी करें कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे. Thank you, sir. Okay, good. Sachin Srinath. Sachin. Yes, sir. Yeah, please go ahead. So I have prepared for this one small monologue from Othello. Ah. Like to the Pontic Sea, whose icy currents and compulsive force shall never feel the retiring ebb, but keeps on due to the Propontic and the Hellespont. Even though my bloody thoughts, with violent pace, shall never look back, never ebb to humble love, until a capable and wide ribbon swallow them up. That's all. Okay. Hello? Ah, done? Yes, sir. Yeah. Rohit Trivedi. Rohit is there? Rohit Trivedi. Yeah, go ahead. If you are there. Okay, Prabuddha Pandey. Sir, yes, sir. Yeah, go ahead. माता, प्रभु हूं या परात्पर हूं, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो. मैंने अर्जुन से कहा था, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग शेप मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर. 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार. गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर मैं ही बहूंगा मां. जीवन भी हूं तो मृत्यु भी मैं ही हूं न मां. शाप ये तुम्हारा स्वीकार है. एक्चुअली सर मैंने दूसरी पोएम करी थी, लेकिन सुशील जी को देख के मुझे ये याद आ गई थी, इसलिए मैंने ये किया सर. अच्छा किया, अच्छा काम किया. नेहा सहाय. नेहा जी. नेहा. Sir, is it working now? I can try. Yeah. So But can I I have try? already called Neha. If she's Okay, ready, sir. she can do. Otherwise, we can. Okay, sir, after her then. Yeah. After Neha. Neha is not ready. Okay, Rohit, go ahead. Sir, should I have video on or off? As you say, sir. As you wish. No issue. If there is no video, also no problem. Okay, No sir. problem. Sir, I prepared yesterday. Last time was English, so this time I Ah. prepared Hindi poem and Hindi monologue, sir. हाँ, एक बताओ, एक. So, तो फिर सर जो भी आप बोले monologue और poem. Anyone. Last time monologue था ना, अभी poetry दे देना. ठीक है सर. सर हिंदी है लखनऊ हाँ. और कुंवर नारायण जी की है. कुंवर नारायण जी कहाँ से? बनारस से? हाँ जी. हाँ. नहीं सर, कुंवर नारायण सिंह हमारे फैजाबाद के थे. नाउ ही लेट. ओके. अच्छा. एक कुंवर नारायण बनारस से भी है. ठीक है. अच्छा सर, आई एम सॉरी, आई एम नॉट श्योर कौन से वाले हैं. आई एम ऑल्सो नॉट श्योर. पर्सन आई नो हिम, सो इसीलिए मैंने बोला कोई बात नहीं, कोई भी हो, हमारे ही है सब लोग. शुरू हो जाओ. जी सर. If I listen the poem, I can tell by whom it is written. वेरी गुड. ठीक है. लखनऊ. हाँ. किसी नौजवान के जवान तरीकों पर त्योरियां चढ़ाएं,
एक टूटी आराम कुर्सी पर अधलेटे, अधमरे बूढ़े सा खास्ता हुआ लखनऊ, कॉफी हाउस हजरतगंज, अमीनाबाद और चौक तक 4 तहजीबों में बटा हुआ लखनऊ। बिना बात बात पर बहस करते हुए, एक दूसरे से उबे हुए मगर एक दूसरे को सहते हुए, एक दूसरे से बचते हुए पर एक दूसरे से टकराते हुए, गम पीते हुए और गम खाते हुए, जिंदगी के लिए तरसते कुछ मरे हुए नौजवानों वाला लखनऊ। नई शाम अवध, 10 सेकेंड में समझाने समझने वाली किसी बात को करीब 2 घंटे की बहस के बाद समझाया। अपनी सर पर दौड़ती अक्ल को किसी बेअकल की समझ के झकड़े में जोत कर हजरतगंज की सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर थकाया। कॉफी हाउस की जगह भैंसों से काम चलाया और शाम अवध को शामते अवध की तरह बिताया। बाजार, जहां जरूरतों का दम घुटता है, बाजार जहां भीड़ का एक युग चलता है, सड़कें जिन पर जगह नहीं, भागा भाग जिनकी वजह नहीं, महज एक बेरोनक आना जाना, यह है शहर का बिसाट खाना। थैंक यू सर। ओके ओके, मुझे लगता है इसमें कुछ एडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है रोहित, आई डोंट नो। जैसे ऐड करके हम बात करते हैं ना, कहीं जो स्टॉप हो रहा है उसमें हाँ जी कहीं सर। प्रॉब्लम्स है, मुझे अच्छा जहां तक लगता है वो देख लेना आप, ठीक है। जी सर। नेहा जी रेडी है? नहीं है तो सचिन का हो गया? हो गया। नेहा, मनोज Yes, sir. हाँ Sir, there's a poem by Harivansh Rai Bachchan, so I हाँ, am reciting that. क्या प्लीज। जी, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। थैंक यू। अभी भी बुकिश हो रहा है मनोज जी, थोड़ा आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा अभी भी। ओके, राइट As सर। if you are reading it ना, उसको थोड़ा राइट सर, आप राइट सर, ना, we need to be राइट राइट very clear. राइट After राइट। Manoj, Manish Singh is here. Manish, Mr. Manish, are you there? मनीष को सुने आ रहा है। चलो जयंती Yes, sir. या प्लीज। Yeah, good evening, sir. या सर, मैं महादेवी वर्मा जी की बिंदा जो कहानी है उसका एक पार्ट बोलूंगी। हाँ बोलिए। जी। भीत सी आंखों वाली उस दुर्बल, छोटी और अपने आप में ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालते हुए मैंने सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर लीजिए, बाद में दिक्कत होगी। नहीं, यह तो गत आषाढ़ में 14 वर्ष की हो चुकी है। सुनकर मैंने कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थी को अच्छी तरह देखा, जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरी के सल्लज उत्साह से अपरिचित। उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वगत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई थी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला। मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होंगी। और उनके वाक्य को अधसुना ही छोड़कर
मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में खो गया। नीचे दबे बिंदा या विष शेरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। थैंक यू सर। ओके, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है तो हाँ ठीक है, शॉर्ट सा। राइट राइट, वेरी गुड। थैंक यू उसके सर। बाद या जयवर्धन गुप्ता, हाँ यस सर। प्लीज। सर आधे अधूरे हाँ बोलिए। का एक डायलॉग बोल रहा हूँ, मोहन राकेश द्वारा लिखित है। हाँ जी। ये पूर्वार्ध का एक सीन है, काला सूट वाला बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कर सकता, उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कर सकता, क्योंकि यह नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने का कारण यह है कि, परंतु कारण की बात करना बेकार है। कारण हर चीज का कुछ ना कुछ होता है, हालांकि आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो। और जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूं तो और किसी चीज के कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता हूं। मैं वास्तव में कौन हूं, यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया है। जो मैं इस मंच पर हूं वो यहां से बाहर नहीं हूं, और जो बाहर हूं, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहां से बाहर क्या हूं। शायद अपने बारे में इतना कह देना ही काफी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते हुए आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वो आदमी मैं हूं। आप सिर्फ घूर कर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, किस किस से मिलता हूँ और किन किन परिस्थितियों में जीता हूँ। आप मतलब नहीं रखते क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता, और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूँ। इसलिए जहां इस समय मैं खड़ा हूं वहां मेरी जगह आप भी हो सकते थे। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है। यही समानता आप में और उसमें और दूसरे में, उस दूसरे में और मुझ में, बहरहाल इस गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा है। बात इतनी है कि विभाजित होकर मैं किसी न किसी अंश में आप में से हर एक व्यक्ति हूँ, और यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या अंदर मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं है। मैंने कहा था यह नाटक भी मेरी ही तरह अनिश्चित है। उसका कारण भी यही है कि मैं इसमें हूँ और मेरे होने से ही इसमें सब कुछ निर्धारित या अनिर्धारित है। एक विशेष परिवार, उसकी कुछ विशेष परिस्थितियां। परिवार दूसरा होने से परिस्थितियां बदल जाती, मैं वही रहता। इसी तरह सब कुछ निर्धारित करता। इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी तरह से मुझे झेलती, या वह स्त्री मेरी भूमिका ले लेती या मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक अंत तक फिर भी इतना ही अनिश्चित बना रहता, और यह निर्णय करना इतना ही कठिन होता कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मेरी, उस स्त्री की, परिस्थितियों की, या तीनों के बीच से उठते कुछ सवालों की। थैंक यू सर। ओके ओके, अच्छा। शशि, फैज सिद्दीकी। यस सर। या प्लीज। सर गुलजार साहब का एक प्ले है खराशे। हाँ सर उसकी कुछ लाइन्स हैं। हाँ ठीक है। मनोज एंड जयवर्धन, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन्स प्लीज। ओके सर, ओके सर। गो अहेड फैज। ओके सर। सन 1947 में आग और खून से लिपटी एक लकीर मुल्क को काटती हुई गुजर गई और मुल्क तकसीम हो गया। लाखों लोग दोनों तरफ फिरका वीराना और वहशत का शिकार हुए। 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, वो फसादात आज भी जारी है।
एक जगह आग बुझती है तो दूसरी तरफ धुआं सर उठा लेता है। एक आस्तीन पर खून सूखता है तो दूसरे हाथ की उंगलियां खून में डूबी नजर आती हैं। कभी पंजाब में, कभी बंगाल में, कभी गुजरात में और अब महाराष्ट्र में। ये जख्म भरते नहीं, बस एक खुरन सा जम जाता है। कुछ देर के लिए सही, फिर कहीं दंगे शुरू हो जाते हैं और खराशें रसने लगती हैं। अब तो ये लगता है कि ये जख्म आंखों से चिपक गए हैं। आंखें बहती रहती हैं और ये जख्म रिश्ते रहते हैं, रिश्ते रहते हैं। सारा दिन मैं खून से लथपथ रहता हूँ। सारे दिन में खून सूख सूख कर काला पड़ जाता है, पपड़ी सी जम जाती है। खुरच खुरच के नाखूनों से चमड़ी छिलने लगती है। नाक में खून की कच्ची बू और कपड़ों पे काले काले चिकत्ते से रह जाते हैं। रोज सुबह अखबार मेरे घर खून से लथपथ आता है, खून से लथपथ आता है। ओके सर। ओके ओके इसका जो स्क्रिप्ट है ना, इसका अगर स्क्रिप्ट है तो हमसे शेयर करो, वी वुड लाइक टू Okay. रीड इट। ओके ओके सर। हाँ, उसको थोड़ा स्कैन करके हमें भेजो, मैं भी देखना चाहता हूँ। है सर और ग्रुप पे अपलोड करवा दे, हम भी पढ़ना चाहते हैं अच्छे से। हाँ, मेरे पास आ गए तो मैं ग्रुप में कर सकता हूँ। यस सर, सर मैं प्लीज। ओके फैज उसको देखो तुम, है ओके ओके सर। स्क्रिप्ट सर को क्या नाम हमारे था पास प्ले का? भेजो। है हाँ, खराशे। खराशे, ओके ओके सर, ओके ओके। ठीक है। शशि कुमारी, डॉक्टर शशि कुमारी, गुड इवनिंग सर। या सर जयशंकर प्रसाद की कामायनी की श्रद्धा हाँ सर्ग की कुछ लाइनें हैं, वही हम हाँ जी सुनाना हाँ चाहते जी हाँ जी। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का सब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। एक छिटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत। कुतूहल रह न सका फिर मौन, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। थैंक यू सर। ओके, दोनों रॉय, Yes, sir. या So I'm going to recite a poetry by Anne Sexton, and it's called The Abortion. Somebody who should have been born is gone. Just as the earth puckered its mouth, each bud puffing out from its knot. I changed my shoes, and then I drove south. Up past the blue mountains, where Pennsylvania hums on endlessly, wearing, like a crayon cat, its green hair. Its roads sunken in like a grey washboard, where in truth the ground cracks evilly, a dark socket from which the coal has poured. Somebody who should have been born is gone. The grass as bristly and stout as chives, and me wondering when the ground would break, and me wondering how anything fragile survives. Up in Pennsylvania, I met a little man, not Rumpelstiltskin at all, at all. He took the fullness that love began. Returning north, even the sky grew thin like this high window looking nowhere. The road was as flat as a sheet of tin. Somebody who should have been born is gone. Yes, woman, such logic will lead to loss without death. Or say what you meant, you coward. This baby
that I bleed. Thank you, sir. It's done. Thank you. Good. Aspita is there? Yes, sir. Yeah, please go ahead. Sir, actually, I prepared two poetry, but I would like to recite "मैं तुझे फिर मिलूंगी" by Amrita Pritam. वाह, क्या बात है. Go ahead. मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ, कैसे, पता नहीं. शायद तेरे कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतरूंगी, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमय लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी. मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ, कैसे, पता नहीं. या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवास पर बिछ जाऊंगी. पता नहीं कहाँ, किस तरह, पर तुझे जरूर मिलूंगी. या फिर एक चश्मा बनी तेरे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदे तेरे बदन पर मलूंगी, और एक शीतल एहसास बन तेरे सीने से लगूंगी. मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा ये जन्म मेरे साथ चलेगा. या जिस्म खत्म हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होते हैं. मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी. मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ, कैसे, पता नहीं. थैंक यू सर. थैंक यू. ये अमृता प्रीतम का लास्ट ईयर अगस्त में शायद 100 years का हो गया था उनका टाइम पीरियड, है ना. People were celebrating centenary kind of a thing. Okay, we were also trying to do something, but possible नहीं हो पाया. Amandeep Saxena, good. Aspita, you have selected one. Yeah. Amandeep Saxena. Hello, sir. Yeah. Are you there? Waiting for my call, sir. Please. Your call has come now. It is a poem, sir. Hindi poem. हाँ, बताइए. Composed by Shri Harivansh Rai Bachchan. अरे The वाह. title is यात्रा और यात्री. यात्रा और यात्री. हाँ, बोलिए. सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर. चल रहा है तारकों का दल गगन में गीत गाता. चल रहा आकाश भी है शून्य में भ्रमता भ्रमाता. पाँव के नीचे पड़ी अचला नहीं यह चंचला है. एक कण भी एक क्षण भी एक थल पर टिक न पाता. शक्तियाँ गति की तुझे सब ओर से घेरे हुए हैं. स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर. सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर. थे जहाँ पर गर्त पैरों को जमाना ही पड़ा था. पत्थरों से पाँव के छाले छिलाना ही पड़ा था. घास मखमल सी जहाँ थी मन गया था लोट सहसा. थी घनी छाया जहाँ पर तन जुड़ाना ही पड़ा था. पग परीक्षा पग प्रलोभन जोर कमजोरी भरा तू. इस तरफ डटना उधर ढलना पड़ेगा ही मुसाफिर. सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर. शूल कुछ ऐसे पगों में चेतना की स्फूर्ति भरते. तेज चलने को विवश करते हमेशा जबकि गढ़ते. शुक्रिया उनका कि वे पथ को रहे प्रेरक बनाए. किंतु कुछ ऐसे कि रुकने के लिए मजबूर करते. और जो उत्साह का देते कलेजा चीर ऐसे. कंटकों का दल तुझे डलना पड़ेगा ही मुसाफिर. सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर. सूर्य ने हंसना भुलाया चंद्रमा ने मुस्कुराना. और भूली यामिनी भी तारिकाओं को जगाना. एक झोंके ने बुझाया हाथ का भी दीप लेकिन मत बना इसको पथिक तू बैठ जाने का बहाना. एक कोने में हृदय की आग तेरे जल रही है. देखने को मग तुझे जलना पड़ेगा ही मुसाफिर. सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर. वह कठिन पथ और कब उसकी मुसीबत भूलती है. सांस उसकी याद करके भी अभी तक फूलती है. यह मनुज की वीरता है या कि उसकी बेहयाई. साथ ही आशा सुखों का स्वप्न लेकर झूलती है. सत्य सुदियाँ झूठ शायर स्वप्न पर चलना अगर है. झूठ से सच को तुझे छलना पड़ेगा ही मुसाफिर. सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर. सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर. That's all, sir. ओके अमनदीप, गुड. ये इसका जो टेक्स्ट है ना, इसको हमें भेज दो. वी नीड टू रीड इट, है ना अमनदीप. I will send you. I will send it to you. स्कैन करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो. मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ सो दैट अदर पीपल विल आल्सो गेट. एंड दिस इज आल्सो मोर ओवर, ये भी उस रिदम में बैठा हुआ है. अगर ठीक है
Actually, take sir, next I question. tried to find out a poem that is not popular so much. वही I देखना find it. पड़ेगा ना। गुड गुड, अच्छी बात है, आप हमको शेयर कीजिए। आशु Okay, थापा, sir. आशु थापा इज देयर? थापा? Sir, I'm there. Yeah, please. Sir, I was not prepared, but getting inspired from the others, trying to read it for the first time. That is great thing. Thank you, sir. यह मेरा मानना है कि दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है, हमारे बाद की किसी पीढ़ी को शायद ही इतना बदलाव देख पाना संभव हो। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट देखे हैं, बेरंग खत से लेकर लाइव चैटिंग तक देखा है, और अब वर्चुअल मीटिंग जैसी असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव होते देखा है। हम वो पीढ़ी है जिन्होंने कई कई मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियां सुनी, जमीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में चाय भी पी है। हम वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्लों के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल, गिल्ली डंडा, छुक्का, लुका छिपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेले हैं। हम आखिरी पीढ़ी के वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात, डिबली, लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है और दिन के उजाले चादर के अंदर छिपकर नॉवल पढ़े हैं। हम उसी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किए हैं। उन खतों के पहुंचने और जवाब के वापस आने में महीनों तक इंतजार किया है। हम उसी आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजारा है और बिजली के बिना भी गुजारा किया है। हम आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दवात या पेन से कॉपी, किताबें, कपड़े और हाथ काले नीले किए हैं। तख्ती पर सेठ की कलम से लिखा है और तख्ती घोटी है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीचर से मार खाई है और घर में शिकायत करने पर फिर मार खाई है। हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्लों के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर को आ जाया करते थे और समाज के बड़े बूढ़ों की इज्जत करने की हद तक करते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल के सफेद कैनवस शूज पर खड़िए का पेस्ट लगाकर चिपकाया है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने गोदरेज की सोप की गोल डिबिया से साबुन लगाकर शेव बनाई है, जिन्होंने गुड़ की चाय भी पी है। काफी समय तक सुबह काला या लाल दंत मंजन या सफेद टूथपेस्ट पाउडर का इस्तेमाल किया है और कभी कभी नमक या लकड़ी के कोयले से भी दांत को साफ किया है। हम निश्चित ही वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर BBC की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बिना का गीत माला और हवा महल जैसे प्रोग्राम बड़ी शिद्दत से सुने। हम वो आखिरी लोग हैं जब हम शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे, उसके बाद सफेद चादरें बिछाकर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा के लिए हुआ करता था। सुबह सूरज निकलने के बाद ही नील बने सोते रहते थे। वो सब दौर बीत गया। चादरें अब नहीं बिछा करती। डब्बों जैसे कमरों में कूलर, एसी के सामने रात होती है, दिन गुजरते हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोगों को देखा है, जो लगातार कम होते चले गए। अब वो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतने ही खुद गर्जी, बेमुरव्वती, अनिश्चितता, अकेलेपन व निराशा में खोते चले जा रहे हैं। और हम वो खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास की महसूस की। और अब इस दुनिया के वो लोग भी हैं जिन्होंने एक ऐसा अविश्वसनीय सा लगने वाला नजारा देखा है। आज के इस कोरोना काल में पारिवारिक रिश्तेदारों, बहुत से पति पत्नी
माँ बाप, बेटे, भाई बहन आदि को एक दूसरे को छूने से डरते हुए भी देखा है। पारिवारिक रिश्तों की तो बात ही क्या करें, खुद आदमी ही अपने हाथों से अपनी नाक और मुंह को छूने से डरते हुए भी देखा है। अर्थी को बिना 4 कंधों के शमशान घाट पर जाते हुए देखा है। पार्थिव शरीर को दूर से ही अग्नि दाग लगते हुए भी देखा है। हम आज के भारत की एकमात्र वह पीढ़ी है जिन्होंने अपने माँ बाप की बात भी मानी और बच्चों की बात भी मान रहे हैं। थैंक यू सर। Okay, but Ashu Thapa, the rule point is you have to select a poetry or a monologue from a play. Yes sir. मैंने वो नहीं Okay. किया, मैं आज some I don't know long time. Yeah, I know. But okay, आगे जब ध्यान रखना कोई पोइट्री उठाओ या तो फिर किसी प्ले से अपना कोई लाइंस उठाइए, ठीक है? Rule is rule and rule for all. Yes, Okay. Thank And you. last but not least today, Neha is there. Neha, वापस. Sir, even I am there, sir. I know. You are already Yes, sir, there. I'm there. I was on a call. I'm sorry, I missed it. Noha, ठीक है. नेहा आपके बाद सुक्रीम और then today we can conclude this. Yeah. So मैं मोनोलॉग, तुम रह गए तुषार, कहाँ गए थे फिर? मैंने तुम आपका नाम पर बुला था. Anyway, तुषार is also there. Prepare. ठीक है. So I'm taking a piece by Colonel सूरज सिंह, जो कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक जी का बहुत ही प्रसिद्ध प्ले है, और उनसे the opening lines to the play are what I will be taking forward, sir. Okay. मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया है? शायद नहीं। मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। सामने खड़ी मौत को मार देने वाले वे लम्हे, वे मोमेंट्स जो कभी खून जमा देते हैं और कभी खून में आग लगा देते हैं, सिर से पैर तक। मैं बिस्तर पर लेटे मरीज की बात नहीं कर रहा, एक घातक छलांग लगाने को तैयार उस मौत की बात कर रहा हूं जो साफ दिखाई देती है, चाहे एक मोमेंट के लिए। मारने और मरने वाले की आंखों में, दोनों की आंखों में। मैंने बहुत लोगों की जान ली है, मौत के घाट उतारा है, युद्ध में भी और कोर्ट मार्शल में भी। लेकिन ना कभी मेरा खून जमा और ना ही कभी उसमें आग लगी। शायद उन क्षणों में मेरी आत्मा में मेरे पूर्वज आ बैठते हैं, जो सदियों से मौत से खेलते आ रहे हैं, द डीलर्स इन डेथ। दादी की सुनाई कहानियों के पात्र मेरे जिस्म का, मेरी रूह का हिस्सा बन गए हैं। हाथों में लपलपाती तलवारें लिए मैदानों, रेगिस्तानों और पहाड़ों पर दिन रात दौड़ते घुड़सवार, द राइडर्स ऑफ डेथ। जलती रेत पर अंधेड़ गति से दौड़ते घोड़े, खच की आवाज से जिस्मों को चीरती फाड़ती तलवारें और रेत में जज्ब होता खून। आजादी से पहले हम लोग राजस्थान की छोटी सी रियासत के राजा थे। दादी सुनाती थी दादा की कहानियां, एक डाकू राजा की कहानियां। पिता की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो घोड़े पर सवार होकर आदमी नहीं मारते थे, पोलो ग्राउंड में गेंद को मारते थे। माँ की बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी इस युग की ही है, कोका कोला प्रोडक्ट। दादी बताया करती थी कि हमारे पूर्वजों के दोनों हाथों में तलवारें होती थी, नंगी तलवारें। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पानी के प्याले वाली बात को ना कभी उन्होंने समझा और ना ही कभी स्वीकारा। शायद हमारे वंश वालों ने दया और क्षमा शब्द छोड़कर मिटा दिए थे, और मैं ना कभी क्षमा करता हूं, ना ही किसी तरह की दया। बस
Oh, okay. Tushar. यस सर. Yeah, go ahead. तो सर ये कुछ लाइनें हैं प्ले चुहल की, जो मानव कौल जी ने लिखा है. तो उसकी ये लाइनें हैं. एक बार मैंने खुद को चमत्कृत सा ताजमहल के सामने खड़ा पाया. मेरे चखे अनुभवों के बाहर वे अनुभव था. मैं देर तक उसके गोल गोल चक्कर काटता रहा. अचानक मुझे लगने लगा कि बहुत भीतर एक संबंध मैं ताजमहल के साथ महसूस कर रहा हूँ. ये ताजमहल सिर्फ मेरा है, मेरा. जब उसे बाकी लोग देख रहे थे, फोटो खींच रहे थे, छू रहे थे, तो मुझे घंघोर जलन महसूस हो रही थी. मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता था, अपने घर. बाद में मैं अपने घर एक छोटा सा ताजमहल खरीद कर ले आया. बहुत सालों तक वो टीवी के ऊपर रखा रहा, फिर अलमारी के ऊपर, फिर कहीं गिरकर टूट गया शायद. कहाँ गुम हो गया मुझे याद नहीं. बस सर. Okay. Sukhri? Yes, sir. Yeah, please. Sir, this time I have picked up one Marathi Bal Geet which we used to learn in school. It is by Mahakavi Gardi Madgulkar. Okay. And this, maybe some of them might know this. This is basically a Marathi Bal Geet by the name Natsre Mora. This is describing how a peacock is joyful when it starts raining. Yeah. And what all has. Okay. Yeah. I'll be singing it. Basically, we have learnt it in that form. So Okay. we're doing it. Start. नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच. नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच. ढगांशी वारा झुंजला रे, काळा काळा कापूस पिंजला रे. ढगांशी वारा झुंजला रे, काळा काळा कापूस पिंजला रे. आता तुझी पाळी वीज देते ताळी, आता तुझी पाळी वीज देते ताळी. फुलं पिसारा नाच. नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच. नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच. झर झर धार झरली रे, झाडांची भिजली हिरली रे. झर झर धार झरली रे, झाडांची भिजली हिरली रे. पावसात नाहू काहीतरी गाऊ, पावसात नाहू काहीतरी गाऊ. करून पुकारा नाच. नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच. नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा. थेंब थेंब तळ्यात नाचती रे, टप टप पाण्यात वाजती रे. थेंब थेंब तळ्यात नाचती रे, टप टप पाण्यात वाजती रे. पावसाच्या रेगात खेळ खेळू दोघात, पावसाच्या रेगात खेळ खेळू दोघात. दिया सोंगड्या नाच. नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच. नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच. पावसाची रिंबझिंब थांबली रे, तुझी माझी जोडी जमली रे. पावसाची रिंबझिंब थांबली रे, तुझी माझी जोडी जमली रे. आभाळात छान छान सातरंगी कमान, आभाळात छान छान सातरंगी कमान. कमानी खाली त्या नाच. नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच. नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच. That's all, sir. Okay. Actually, this song I've seen it in a movie. I think it is in Netflix or Prime. I don't remember. One movie Sir, called this Bhai. is we had learned in Bhai. we had learned in grade 2 Yeah. when we were in school. There is one movie on G.P. Deshpande. G.P. Deshpande is a very big theatre personality from Maharashtra. उनके नाम पे उनके बायो पिक्चर आई है दो पार्ट में.
उन्होंने महेश मंजरेकर ने डायरेक्ट किया उसको। उसका टाइटल है भाई। इफ एनीबडी यू कैन ट्राई दिस मूवी, इज अ वेरी गुड मूवी। ऐसे 2-3 पिक्चर आए हैं जो मराठी एक्टर्स के बायोस पे बने हैं। कोई और भी आया था, उनका एक्टर का नाम मैं भूल रहा हूँ, इज अ सुपरस्टार इन मराठी थिएटर, जिसके प्लेस के टिकट्स ब्लैक में बिकते थे। नेक्स्ट सेशन आई कैन गिव हिज नेम आल्सो, बट जीपी देश नो, अभी तो एक तो जीपी देशपांडे हैं, उसके उनके ऊपर फिल्म आया है, उसका टाइटल है भाई। भाई दो पार्ट्स में बनी है, उसमें ये गाना वो एनेक्ट करते हैं, है ना। तो यही गाना है उनका, मैं सुना हूँ इसलिए मुझे याद आ रहा है। This is very famous, sir, because when we were in school, we had learned this in grade 2, and I still recollect this because हर स्कूल के, मतलब महाराष्ट्र में, मुंबई में बेसिकली हर स्कूल में बच्चों को ये सिखाया जाता है। Great, good thing. So you try to see this movie also, okay? Okay, guys. Today it's a very good opening for the people who are listening to different languages. We are getting acquaintance for different speeches. People have now started selecting different things. But my suggestion is कि थोड़ा हम रेगुलर पैटर्न को हटके हुए जो बहुत ही फेमस स्क्रिप्ट्स है वो तो है ही है, उसके अलावा भी we will try to see those scripts which are not famous in the sense कि we do not have an idea access to those scripts. उन चीजों को आप सेलेक्ट कीजिए और उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए, उसमें हमारा काम करने के लिए स्कोप भी मिलता है, ठीक है। In the meantime, tomorrow or day after tomorrow, I will also try to forward some of the play scripts in the group. Then we will see what we can do about those things. Okay. Thank you, sir. Thank you. And एग्जाम्स के बारे में मैंने तो बता दिया, वो ध्यान में रख के 15 के अंदर अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर दे, ठीक है। Thank you, sir. Okay, sir. Bye. Good day. Okay. Good night.